welcome to online learning to all. So मोदी जी आए हैं. And this is the all individual. So Modi is asking, are you ready guys? कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग. कल क्या पढ़ा था हम लोग ने? क्यों म्यूट कर दो ना जो भी है. इसके घर से वो आवाज आ रहा है. ओके. तो हम लोग को क्या पढ़ना है? टैक्स. तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था इस बारे में. दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. सो इन फर्स्ट सिचुएशन आपको समझना था कि जो इनकम अर्न कर रहा है उसी को टैक्स पे करना है. सेकेंड सिचुएशन में ऐसा था कि जो इनकम अर्न कर रहा है लेकिन जब तक वो गुड्स खरीदने नहीं जाएगा तब तक उसको टैक्स पे नहीं करना है. तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टैक्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. Indirect tax. Yes, direct tax is income tax. Higher the income, you have to pay higher the tax. In indirect tax, GST, custom duty, stamp duty, rates are flats and fixed. Fixed. So we are discussing about the GST. So GST is full form is goods and services tax. Goods and services tax. It's not service, it's services. Tax is the revenue income for the government. So just fill the blanks. Goods and services tax is applicable to whole of India. Whole of India. Even Jammu and Kashmir also. Okay. GST is based on dash. Consumption changes Yes, from production. Yes. GST is based on consumption and changes from production. One nation, one tax. One nation, one tax. GST is regulated by CBEC. CBEC. Full form? Central Board of Excise Customs. Excise and Customs. Okay. Central Board of Excise and Customs. GST dash, dual levy and concurrent power. ये जिसके घर पे डॉगी है वो जरा प्लीज म्यूट कर दो ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा अदरवाइज एल्स. ओके. GST is dual levy and concurrent power. Yes. GST has replaced the indirect taxes. GST has replaced the indirect taxes. Indirect taxes. Yes. Effective dates of GST is 1st July 2017. GST eliminates the dash. Cascading effect. Yes, cascading effect. What do you mean by cascading effect? Double taxation. Yes, double taxation, tax on tax. Okay. So जरा से ग्लोबल सिनेरियो भी देख लेते एक बार. हम लोग ने कल देखा था, रिवाइज कर लेते एक बार. Dash was the first country implement GST in the year dash. France. Yes, France was the first country and 1954. yes, 1950. Yes, 1954. More than how many countries? 160. Yes. 160. 160. India is the numbers 161. 161. Okay. Dash rate system is going on in global. Single rate. Yes, single rate system. India has chosen Canadian model. yes, having a dual GST model like example. Brazil and Canada. Brazil. Yes, Brazil and Canada, etc. What's going on? Standard rates in 15 to 20. 15 to 20%. 15 to 20%. Yes, सबको सब कुछ याद है मतलब. Good. देख के तो नहीं बोल रहा किसी के पास स्क्रीनशॉट से देख. तो ये क्या था जर्नी जीएसटी का?
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी जीएसटी की जर्नी। सो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो लाइक कमिटी है, उसने कमिटी बिठा के स्टार्ट किया था 2000 में जीएसटी, एंड उसने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था जीएसटी का 2000 से। एंड ये कौन है? पी चिदम्बरम। P. Chidambaram, Yes, Finance Minister. former finance minister. During the budget of 2006 and 7, GST would be introduced from 1st April. He told like that, but हुआ नहीं था। Mhm. बट फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था जीएसटी बिल मतलब व्हाट डू मीन बाय बिल इन टैक्स? It's like a performer for Yes. approval. यस, Estimate. बिल मीन्स इज रफ वर्क। मतलब अगर आपको कोई भी एक्ट पास करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बिल, देन इट विल बी प्रपोज्ड एंड लाइक अप्रूवल, यू विल गेट अप्रूवल, इट विल बिकम एक्ट। ओके, सो बीजेपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एंड दे गॉट द अप्रूवल आल्सो फ्रॉम कमिटी मेंबर्स एंड इन द ईयर 2014। So finally, Arun Jaitley re-proposed the GST rollout on by 1st April 2017. Arun Jaitley ने बोल दिया था, and he got proposal also, like approval also from both the houses. Which houses? Lok Sabha and Lok Sabha and Rajya Rajya Sabha. Sabha. Okay. So we have discussed yesterday the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes. So Lok Sabha is House of Parliament, like lower house of people. They become the members like election basis on the voting, and the period of holding is like 5 years का लोक सभा में। एंड राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, काउंसलिंग अपर हाउस वाले हैं, वहाँ पे इलेक्टिव बेसिस पे होता है वो ऊपर वाला, और यहाँ पे ये जो होता है वो सिलेक्टिव बेसिस पे होता है, फील्ड एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ग्रीन कलर एंड रेड कलर yesterday. So this is a counseling meeting, first counseling meeting, September 2016. In the month of March 2017, वो लोग ने रिकमेंडेड किया था कि CGST लाना है, SGST लाना है, IGST लाना है, UTGST लाना है, कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट लाना है। वो लोग ने सब रिकमेंडेड किया था एंड उसके बाद दे गॉट अप्रूवल एंड दे एक्ट पास। फिर जीएसटी एक्ट आया 2017 में। ये देखो आप देख सकते हो जीएसटी के 3 टाइप्स है, SGST, CGST एंड IGST. IGST stands for Integrated Goods and CGST. Services Tax. Okay. Central Service Tax. And S state. State Goods and Service Tax. Okay. So GST got live historical midnight 38 June को and 1st July 2017 से applicable है। Applicable. Okay. So GST Act 2017 पास हुआ। So हम लोग ने GST का वेलकम कल किया था, ठीक है? ओके, सो वी स्टार्ट। सो ना आप लोग को जीएसटी में पढ़ना है, या आप लोग का टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जिसके पास नहीं है उसके लिए मेरे को ये बनाना पड़ा स्लाइड। इतना जीएसटी में पूरा कवर अप होगा, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। बेसिक कंसेप्ट अभी तक जीएसटी क्यों आया, कैसे था, क्या क्या लगा, हो गए थोड़े बहुत जीएसटी की, मतलब लाइक ये थोड़ा बहुत बाकी है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में इन डिटेल थोड़ा सा, वो हम लोग अभी थोड़े टाइम में कवर अप करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे हो जाता है। फिर सेकंड टॉपिक आपका सप्लाई आएगा, कंपोजिशन स्कीम है, आरसीएम का जो टॉपिक है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई जिसको टीओएस बोलते हैं, ये सब आपको पूरा कवर अप करना है। यहाँ तक अगर आप देखोगे 9 टॉपिक तक पूरा थियोरी है, फुल थियोरी। उसके बाद 10 से आप देखोगे लास्ट के 2, 10th और 11th, ये पूरा प्रैक्टिकल पे आपका बेस्ड है। 10th में आपको जीएसटी अकाउंटिंग मतलब क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री पास करने आना चाहिए, जो आपने बीए में सीखा ही होगा। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, अकाउंट्स नॉर्मल जो बेसिक अकाउंट्स है, जर्नल एंट्री पास करना, वो आपको बिजनेस अकाउंटिंग में पता होगा, जैसे आपने पास किया अकाउंटिंग। उसके बाद 11th में आपने टैली में भी सीखा होगा कि अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री है उसको टैली में कैसे पास करते हैं। आई होप आप लोग को टैली हो गया रहेगा आप लोगों का। सबका हो गया ना? Yes. तो ये जो 10th और 11th है वो आपका प्रैक्टिकल है। उसके बाद 12 पूरा थियोरी है। 13th में आपको प्रोजेक्ट सॉल्व करना है।
प्रोजेक्ट में आपको 10th और 11th के ऊपर ही बेस्ड है। आपको पहले नोटबुक में लाइक पूरा जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, फिर 11th टॉपिक में जो है टैली में यूज करना है वो पूरा करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट जो बेस्ड है वो 10th और 11th के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसका थियोरी के लिए आपको थियोरी पूरा थियोरी पता होना चाहिए। बेसिक से लेकर 9 तक जो भी है वो पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको रिटर्न फाइल करना है। जीएसटीएन जो बोला है ना 12th वाला, उसमें हम लोग को रिटर्न फाइल कैसे करते हैं वो देखेंगे। जीएसटी का रिटर्न फाइल वगैरह जो है वो कैसे होता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपका थियोरी है, अभी तक पूरा थियोरी ही चलने वाला है। ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट। सो कंपोनेंट्स एंड चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी, आपको क्या लगता है कंपोनेंट्स क्या होगा जीएसटी का? अभी हम लोग ने देखा थोड़े टाइम पे सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये कंपोनेंट्स है। और चार्जेबिलिटी भी है। चार्जेबिलिटी मतलब हम लोग को चार्ज करना है जीएसटी पे। हम लोग को जीएसटी में क्या चार्ज करोगे आप? सीजीएसटी, एसजीएसटी और कब चार्ज करना है। लेकिन yes, अभी बात आता है कि मैं कब क्या चार्ज करूँ। तीनों एक टाइम से नहीं चार्ज कर सकते हो आप, बिकॉज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। यस, तो मैं कब क्या चार्ज करूँ उसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये तो पता है सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड। ओके, अभी ये जान लेते हैं कि सीजीएसटी कब चार्ज करने का, एसजीएसटी कब करने का और आईजीएसटी कब चार्ज करने का। अगर आपका ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल से आप महाराष्ट्र में हो, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, अगर आपने मेरे से गुड्स खरीदा है, आपको अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, आपने बोला चलो आज जाते हैं शॉपिंग के लिए, आप मुंबई में निकले शॉपिंग के लिए और आप मेरे शॉप पे आए सामान खरीदने के लिए, आपने क्लोथ्स वगैरह खरीदा, मैंने आपको इनवॉइस बना के दिया। अगर आपका ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में हो रहा है तो दे विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम यू। अगर आपका ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। SGST. For example, say you are from Mumbai and you are going Gujarat and you are doing the shoppings and all. तो जब आप गुजरात में जा रहे हो तो आपने शॉपिंग किया वहां पे, वो आपको आईजीएसटी का बना के देगा बिल, बिकॉज स्टेट चेंज हुआ। अगर आपका स्टेट चेंज होता है दैट मीन्स आईजीएसटी दे विल चार्ज। सेम स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, डिफरेंट स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी। क्लियर हुआ? IGST. जरा यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट, ये भी विद इन द स्टेट है, ये दोनों साथ में चार्ज होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कॉन्करेंट पावर सेम पावर है, कॉन्करेंट वाला लेवी वो हमारा कल डिस्कस हुआ था। तो जितना अगर 100 रुपीज, अगर जैसे कि आप, मैंने आपको बताया कि अगर आप मुंबई में ही हो, आपको एक क्लोथ की शॉप पे जा रहे हो, क्लोथ लिया आपने, मॉल में जाके क्लोथ लिया, तो अगर उसने अगर आपसे 200 रुपीज जीएसटी चार्ज किया होगा तो 100 रुपीज विल गो टू सेंट्रल एंड 100 रुपीज गो विल टू द स्टेट। ये कॉन्करेंट पावर है, दोनों के पास सेम राइट है तो सेम अमाउंट जाना चाहिए दोनों। CGST will collected by central, SGST will collect by state, State. and IGST is collected by central only. Center and Only central, and after that central will share to state. state. Yes. Okay. Clear? किसी को कुछ डाउट है CGST, SGST, IGST में? एक बार फिर से No. रिपीट करूँ, बराबर है ना? Okay. किया आपसे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सी नॉर्मल सेम स्टेट को हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं अगर विद इन द स्टेट रहेगा तो, अगर डिफरेंट स्टेट है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट जब आप लोगों को सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगेगा। आप लोगों को पता है वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था, मतलब अगर सेम स्कूल में कंपटीशन हुआ तो इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्कूल हुआ तो इंटर। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहले फोकस आपको कहाँ होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो एंड वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, आपको ये चेक करना है पहले। इफ यू आर इन मुंबई एंड यू आर मेकिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम मुंबई ओनली, दे विल चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप मुंबई से हो, अगर गुजरात जाके, राजस्थान जाके या फिर और भी किधर जाके अगर आप सामान खरीद रहे हो दूसरे स्टेट में, तो दे विल चार्ज आईजीएसटी। आफ्टर दैट सेंट्रल विल बी चार्ज एंड सेंट्रल विल शेयर द टू स्टेट। ओके,
Yes. Example देखो. Oh, so there are 3 types of GST, but I'm not sure how will it work. So second one is saying, okay, I will explain you with a simple example. अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई. इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट हुआ है, मैंने गुड्स का 100 रुपीज लगाया है. यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन 10%. इन द रियलिटी देयर इज नो 10% इन जीएसटी. अभी 10% का ऐसा कुछ भी रूल नहीं आया है. मैंने आपको बोला था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है ऐसा सिंगल रेट, बट अभी तक आया नहीं है वो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया है 10 रुपीज, एंड इंटर स्टेट है तो सिर्फ आईजीएसटी लगा है 20 रुपीज. आपका कॉस्ट सेम होगा, फर्क आपको कुछ नहीं पड़ रहा है. आपको अगर सेम स्टेट से लिया तो भी 120 लगने वाला है, बाहर दूसरी स्टेट से ले रहे हो तो भी 120 लगने वाला है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया कि आप कोई भी कोने से लो, किधर भी, आप पूरे इंडिया में किधर भी जाओ, आपको एक ही जीएसटी लगने वाला है. कास्केडिंग इफेक्ट हटा दिया है, डबल टैक्स जो लगता था, तो आपको अमाउंट सेम ही रहेगा. ये एक फायदा हो गया है. अब कोई भी चीज कहाँ से भी लो, पहले लोग बोलते थे अरे यार ये चीज तो मुंबई में सस्ती मिलती है, अरे ये चीज तो मुंबई में महंगी मिलती है, लोग ऐसा बोलते थे. अभी तो आप किधर से भी लो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी का रेट ही एक है. कोई भी किधर से भी कपड़ा खरीदो आपको जीएसटी का रेट सेम ही लगने वाला है. क्लियर हुआ? मतलब ये फर्क जो पड़ेगा वो स्टेट और लाइक वो गवर्नमेंट देखेगी, इसमें गवर्नमेंट का फायदा है कि क्या है. बट अगर आपको इतना याद रखना है, अगर इंट्रा स्टेट हुआ विद इन द स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा. क्लियर हुआ एग्जांपल? Yes. तो ये क्या है, आप क्या देख सकते हो, उसको क्या दिख रहा है? Petrol. Petrol pump. ये पेट्रोलियम क्रूड है. ये क्या है, इस पे डीजल लिखा हुआ है, हाई स्पीड डीजल है. ये क्या है, ये पेट्रोल है जिसको मोटर स्प्रिट बोलते हैं हम लोग नॉर्मली. ये Gas. नेचुरल Yes. गैस. यस, नेचुरल गैस. Natural gas. ये एविएशन ट्रिबिन ऑफ Aviation ऑयल. turbine. हाँ, यस. ये जो एरोप्लेन वगैरह में रहता है ना, वाइट पेट्रोल. हाँ, ये लोग के लिए रहता है. ये अल्कोहल से ये जो 6 आइटम्स है, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, फ्यूल हुआ, लिकर, अल्कोहल वगैरह जो है, पेट्रोल है, ये सब जीएसटी आइटम से बाहर है. जीएसटी नहीं लग रहा है ये सब चीजों. VAT. आइटम आर केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी. क्यों ऐसा? Okay. अल्कोहल पे क्यों नहीं लग रहा है? अल्कोहल पे तो लगना चाहिए ना, क्यों नहीं लग रहा है? क्या लगता है आपको? होता है इसीलिए शायद सी अगर आप पेट्रोल और यस, नॉर्मली क्या होता है पता है, जीएसटी आने से क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था, जीएसटी ने रिप्लेस किया इनडायरेक्ट टैक्स को. तो जब जीएसटी ने रिप्लेस किया इनडायरेक्ट टैक्स को, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर जीएसटी आने से पहले क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग था. जैसे कि महाराष्ट्र में वैट लगता था तो एम वैट लगता था, गुजरात का जी वैट लगता था, सबका अलग अलग था. मतलब सबका इनकम हर स्टेट का अलग अलग होता था. इन द पॉइंट इज, ये अल्कोहल जो लिकर है, ये वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी है, आपको पता होगा, ये अल्कोहल लिकर जो है वो स्टेट का मेन रेवेन्यू इनकम है. स्टेट का जो है मेन रेवेन्यू इनकम है. तो शी इज नॉट रेडी फॉर दिस. जीएसटी के लिए वो रेडी नहीं है कि ये प्रोडक्ट पे लगना चाहिए करके, क्योंकि वो लोग का मेन रिसोर्सेज तो यहाँ से ही आता है पैसा. अगर वो अगर हाँ बोल देती है ममता बनर्जी कि जीएसटी लगना चाहिए इस पे, तो उसका नुकसान होगा. मतलब उसको पैसा डिवाइड करना पड़ेगा, सेंट्रल को भी जाएगा, स्टेट को भी आएगा. जबकि वो अभी फिलहाल करंटली वो खुद का पूरा एक स्टेट को ही जा रहा है पूरा पैसा, अगर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो. सी ये सब जीएसटी से आउट है, बट बाकी सब तो लग रहा रहेगा जो लग रहा था पहले से. जैसे कि वैट वगैरह जो लग रहा है वो सब लगेगा ही. मैं जीएसटी की बात कर रही हूँ सिर्फ. तो अगर कोई भी एक्ट लाना है तो पहले सब स्टेट को कंफर्म करना पड़ता है. सब जितने भी स्टेट्स है वो सब एग्री होंगे तभी जाके एक्ट पास होगा. अदरवाइज वो बिल ही बना रहेगा, जो रफ वर्क रहता है ना ये लोग का बिल, वही बन के रह जाएगा जब तक अगर सब पास नहीं होगा इसके लिए.
ये अटका हुआ है अभी तक। तो ये सब चीज के लिए वही हो रहा है। अगर स्टेट मान नहीं रहे इसके लिए अभी तक ये सब है। ये लोग का मेन सोर्स तो यही है ना इनकम का। तो अभी वो लोग नहीं मान रहे क्योंकि ये लोग को पैसा डिवाइड करना पड़ेगा दो चीजों में, जो ये लोग रेडी नहीं है फिलहाल में। देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अगर ये इसमें भी कुछ चेंजेस आता है तो वो तो पता चलेगा ही। पर अभी फिलहाल के लिए इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। नहीं है। ओके हम्म। नेक्स्ट। सो आपको क्या लगता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ? जीएसटी जो टैक्स लग रहा है, जो टैक्स मतलब जीएसटी के नाम से ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो नॉर्मली क्या है, किस पे ले रहे हो आप? सप्लाई। यस, आप देख सकते हो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। अगर आप किसी भी चीज को सप्लाई बोल रहे हो तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा मैं इसको सप्लाई बोलूं या नहीं? तो बाजू में दो चीजें लिखी हुई है। एक तो कंसिडरेशन लिखा है जो मैंने टिक मारा है, और एक नेक्स्ट बोला है यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, जिसको भी टिक किया हुआ है। दिख रहा है? यस। सो अगर आपको सप्लाई बोलना है तो आपको पहले दो चीजें देखनी पड़ेगी। क्या उसका कंसिडरेशन हुआ है क्या? कंसिडरेशन मतलब रिटर्न इन समथिंग, समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट बेचा तो बेच के पैसे लिए क्या आपने, उसके बदले कुछ लिया क्या, कंसिडर हुआ क्या उसके बदले कुछ? अगर हाँ बोलते हो तो वो सप्लाई आएगा। लेकिन एक और पॉइंट है नीचे, दोनों कंडीशन फुलफिल होना है यहाँ पे भी। सप्लाई बोलने के लिए कंसिडरेशन तो मस्ट है, मतलब आपको पैसे तो लेने हैं उससे, या फिर काइंड में लो या कैसा भी लो, कंसिडरेशन तो होना चाहिए। लेकिन वो जो होना चाहिए वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यूज इन फर्दरनेस ऑफ बिजनेस मतलब वो, मतलब उसने जो सप्लाई लाइक कभी बोल सकती हूँ जब भी मैं, उसने उसके पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं लिया रहेगा, उसने उसके बिजनेस ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए लिया रहेगा, ओके। तो ही उसको सप्लाई बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे उसको। ये हुआ? यस। दोनों चीज होनी चाहिए। कौन सी? एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई बोलने के लिए, यस, और दूसरा यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस। सी नॉर्मली सप्लाई अगर आप बोल रहे हो तो उसको आप टैक्सेबल इवेंट भी बोल सकते हो। अरे ये देखो ये कल जैसा फिर से हो गया। 10 मिनट है अभी अपने पास, 40 मिनट का जो सीन था ना कल भी, वो एवरी डे रहेगा। तो थोड़ा सा याद रख के, अगर बंद हो जाता है तो टेंशन मत लेना, ऑटोमेटिक रहेगा। तो मुझे यहाँ पे पॉपअप आता है ओके। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक बंद होगा, फिर आपको रीजॉइन करना है वापस से। ओके, ओके। वापस से सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड सेम रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये सप्लाई मीन्स क्या, तो आप उसको बोल सकते हो कि बेसिक चार्जेस है, मतलब बेसिक चार्ज है ऑफ टैक्सेबल इवेंट। इसको आप टैक्सेबल इवेंट भी बोल सकते हो क्योंकि इसी के ऊपर टैक्स लेना है ना मुझे। अगर आप उसको सप्लाई बोलोगे किसी भी चीज को, अगर आपने किसी चीज को सप्लाई बोला मतलब वो टैक्सेबल इवेंट। क्लियर? तो सप्लाई के मतलब मैं कौन सी चीज को सप्लाई बोलूं, कौन सी चीज को सप्लाई नहीं बोलूं, इसमें बहुत चार्ट है, बहुत बड़ा, हम लोग कवर अप करते हैं। ये तो सिर्फ छोटा सा था, यहाँ पे मैंने कवर अप किया कि जीएसटी को आपको जो टैक्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, सप्लाई पे लग रहा है। सप्लाई कब बोलने का, जब कंसिडरेशन हुआ, एंड कंसिडरेशन होने के साथ साथ प्लस फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से अगर अभी जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं चलो ठीक है आएगा तो लेते हैं, आगे आने दो देखते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ नो सप्लाई तो नो जीएसटी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, फॉर एग्जांपल से चलो मैं इंडिया में हूँ और मैंने आउट ऑफ फोन करके एक बोला, लाइक सर्विसेज लिया मैंने आउट ऑफ फोन करके, लाइक चलो ठीक है मेरे को इंटीरियर का काम चाहिए, उसके लिए सर्विसेज लेना है मुझे, मैंने लिया। मैंने उसको इंटीरियर का काम मेरे घर के लिए लिया, मेरे पर्सनल यूज के लिए लिया, घर के लिए, और मैं उसको पैसे दे भी रही हूँ अगर, तो कंसिडरेशन तो हो रहा है ये सिचुएशन में, लेकिन ये मेरा फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये मेरा क्या है, घर के यूज के लिए। इंटीरियर मैंने मेरे बिजनेस में नहीं करा है, मैंने मेरे पर्सनल में करा है, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो जब ये सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई, तो नो जीएसटी।
क्लियर हुआ? हम्म, अगर कंसिडरेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हो रहा है तो सप्लाई ही होगा, आपको कंसिडरेशन के साथ साथ आपको चेक भी करना है फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है या नहीं, एफओबी है या नहीं। एफओबी इज फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। business. क्लियर? business. यहाँ पे देखो सप्लाई सप्लाई का चार्ट है, सप्लाई के अंदर क्या क्या था, सी दो इंक्लूड चार्ट है और एक एक्सक्लूड चार्ट है। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूड्स क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर सप्लाई का एक्सक्लूड हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? Hmm. तो सप्लाई के अंदर इंक्लूड्स में भी अगर दो पार्ट है छोटे छोटे, तो आप देख सकते हो। पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, देखो मिस्टर ए मिस्टर को ए सप्लाई है, करना है, उसकी रिटर्न उसको से पैसे कैश मिल आना रहे, यस एग्जैक्टली। मिस्टर ए ने सप्लाई किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उसको हम्म। कैश दे दिया। क्या है ये, नॉर्मली आप लोग भी करते हो ये सब, आपने कुछ शॉप पे सामान खरीदने के लिए जाते हो, सामान लिया और पैसे दिए उसको, नॉर्मली क्या बोलते हैं इस टर्म्स को? Buying and selling. Normal. Buy and sell. सेल, नॉर्मली सेल बोल सकते हो ना आप उसको, Normal sales. हाँ. नॉर्मल सेल था ये तो। अगर शॉपकीपर के हिसाब से बात करें तो हम लोग सप्लाई देख रहे हैं, ठीक है? अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 7 के अंदर भी दो पार्ट है यहाँ पे, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर अप कर रहे हैं पहले, सेकंड पार्ट हम लोग बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है? हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? फास्ट होगा तो मुझे बोल देना, मैं ऐसे भी धीरे धीरे अपने हिसाब से ले रही हूँ, तो आपको सबको समझ में आना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर सप्लाई होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का भी होगा, विद कंसिडरेशन बोला है, मतलब आप जब सामान बेचोगे तो उसके बदले आप कैश लोगे या काइंड लोगे, कंसीडर करोगे बोला है उसने, समथिंग इन रिटर्न मुझे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हम लोग पहले वो पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ठीक है? ये सेकेंड पॉइंट देखो आप, क्या है, क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड में? ओनली सप्लाई हो रहा है। यस, मिस्टर बी ने सिर्फ सामान बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को, लेकिन क्या मिस्टर बी ने पैसे दिए? नहीं। तो दो चार्ट है यहाँ पे, सप्लाई इंक्लूड्स के अंदर दो चार्ट है, एक तो विद कंसिडरेशन है और दूसरा विदाउट कंसिडरेशन। अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपको सप्लाई इंक्लूड्स है, मतलब अभी हम लोग ने इसके पहले वाले चार्ट में क्या देखा था, सप्लाई में क्या होना चाहिए, एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एफओबी होना चाहिए, तो ही उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। क्लियर? गवर्नमेंट एक साइड ये बोल रही है, दूसरे साइड क्या बोल रही है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है आप समझ लो, सप्लाई इंक्लूड्स है ये हमने बोल दिया मतलब है, ये तो गवर्नमेंट ने बना के ही बोला। अगर आप दो चीजें देखो, ये तो गवर्नमेंट ने इंक्लूड्स करके लिस्ट ही बना के दे दिया है कि ये सब तो इंक्लूड्स है हमारी तरफ से, बाकी आप चेक करो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन हो रहा है या नहीं, वो आप अपने हिसाब से चेक करो, लेकिन ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ, ये हमारे हिसाब से है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेशन है और सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, बट दोनों सप्लाई के अंदर ही आ रहा है, सप्लाई इंक्लूड्स बोला है ना, मतलब इसको गवर्नमेंट ने सप्लाई माना है और आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको इसमें? पहले बोला कि पैसे आएंगे तो टैक्स पे करने का, अभी बोल रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन, मतलब पैसे नहीं भी आ रहे तो भी आपको जीएसटी तो भरना ही है, ठीक है? हम लोग उसके ऊपर बाद में चाहते हैं, पहले हम लोग विद कंसिडरेशन का पॉइंट कवर अप कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना अभी तक? यस। Yes. तो चलो ठीक है, अभी हम लोग ने जो देखा था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेशन के पॉइंट में हूँ मैं। आपको मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये चार्ट जो है ना, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है, बट ये चार्ट अपने खुद के लिए बना के रखना, क्योंकि ये चार्ट मैंने खुद से बनाया है, आप लोगों को किधर मिलेगा नहीं इतना इजी वे, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना थियोरी पूरा भरा हो, मैंने भी आप लोग का अभी तक टेक्स्ट बुक देखा नहीं है जीएसटी का, अभी तक मेरे पास है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि जीएसटी का अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे भी तो वो पूरा थियोरिकल रहेगा, जो आपको समझना बहुत मुश्किल रहेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार ये सिर्फ ये चार्ट बोल रही हूँ मैं आपको, ये चार्ट तो आप नोटबुक में बना के ही रखना, मतलब सब एक साथ हो जाए। ये स्लाइड में प्रॉपरली आ रहा था, एक स्लाइड पूरा आ रहा था, लेकिन वो छोटा छोटा दिखता आपको समझ में नहीं आता, इसके लिए मैंने हर एक स्लाइड को अलग अलग लिया है, बड़ा बड़ा जो आपको दिखे अच्छे से,
तो आपको क्या करना है, जब एक चार्ट लोगे आप तो 2 पेज का लेना, मतलब नॉर्मली जब बुक लेते हो ना A4 साइज की जो नॉर्मल बुक है उसका 2 पेज लेना और दोनों से स्टार्ट करना। सेंटर में लिखना सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 7, उसमें 2 एरो मार के लिखना विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। तो एक पेज में विद कंसिडरेशन पूरा आएगा और दूसरे पेज में विदाउट कंसिडरेशन आएगा। ओके ठीक है, तो हम क्योंकि हम लोग अभी विद कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, विद कंसिडरेशन के भी अंदर 2 है, विदाउट कंसिडरेशन के अंदर तो सिर्फ पॉइंट्स है, जो 4 पॉइंट्स है वो अलग है, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है विदाउट कंसिडरेशन में। सो विद कंसिडरेशन में 2 एरो और है। ठीक है, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते पहले। तो ये फर्स्ट एरो है, ठीक है, ये फर्स्ट एरो है। हाँ इसमें है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दूसरा एरो जो आपको दिख रहा है कंसिडरेशन का मैम, यस यस विद कंसिडरेशन का ये फर्स्ट है। इसके बाद जो सेकेंड एरो जो ब्लैंक है वहां पे भी एक चीज है और मैम ये भी लिख के लेना है, क्या बोल रहे हो? ये भी ये अंदर का जो पार्ट है विद कंसिडरेशन का वो भी लिख के लेना है। नहीं वो स्क्रीनशॉट में लोगे, फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट में ही लो, सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कैसे लिखना है, बाद में आप आराम से के लिखो बाद राइट डाउन करना है। यस यस क्योंकि बहुत टाइम जाएगा आपको लिखने के लिए, समझने पहले समझ लो फिर आराम से लिखना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ रहेगा तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है ठीक है, ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम लोग विद कंसिडरेशन के अंदर है। विद कंसिडरेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये लोग ने सेक्शन 1 के अंदर सब आपको पूरा क्लियर किया हुआ है, सब सेक्शन ए में। वी हैव 1 मिनट, ये बंद होने वाला है 40 मिनट्स में, तो ये पूरा अपन एक देख लेते हैं एक बार, फिर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो रीस्टार्ट कर देना आप लोग। ठीक है, लॉग इन करके। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेल है। सेल मतलब जो नॉर्मल सेल, आप शॉप पे जाते हो, सामान खरीदते हो, पैसे देते हो, वो नॉर्मल सेल जो हम लोग ने भी एग्जांपल देखा था, पैसे दिए सामान लिया क्लियर हो गया। ये सब विद कंसिडरेशन के अंदर ही चल रहा है अभी तक। कंसिडर तो हो रहा है ना, मतलब आपने सामान बेचा, पैसे लिए, नॉर्मली सेल हो गया वो मेरा। सेकंड, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है ये इमेज दिख के? विद कंसिडरेशन